وہ واقعی میں ان کی زندگی کی خوشگوار ترین رات ہوتی اگر وہ سب نہ ہوتا۔ پارٹی جاری تھی، عمر اور ساریہ کھڑے باتوں میں مصروف تھے جب باسط کولڈ ڈرنک لیے ان کی طرف آیا تھا۔ اس نے ان دونوں کی طرف ایک ایک گلاس بڑھایا تھا۔ میں ساریہ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہے۔ میں تو اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے تو ترانہ پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ شٹ اپ، وہ درشتی سے بولی تو باسط مسکرایا تھا۔ وہ تینوں خوش گپیوں میں مصروف تھے جب وہ لڑکا ساریہ کے پاس سے گزرا تھا اور اس کے کندھے کو ٹہوکا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود مشروب کا گلاس چھلک پڑا اور اس کے لباس تک دور تک پھیل گیا تھا۔ وہ تو شاید چپ کر جاتی اگر باسط کی نظر نہ پڑتی۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے اس لڑکے کو گھور کر دیکھا جو اب اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستا ہوا انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئی تھیں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس لڑکے کی طرف بڑھا اور اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنی اوقات میں رہ، سمجھا؟ اس کا لہجہ درش تھا اور آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ تو مجھے اوقات بتائے گا پینڈو؟ تجھے اپنی اوقات پتہ ہے؟ وہ استہزاء سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں پتہ ہے، لیکن شاید تجھے پتہ نہیں۔ تیرے جیسے آوارہ کتے میں نے بہت دیکھے ہیں اپنے گاؤں کی گلیوں میں، اور ان سے نمٹنا بھی بہت اچھے سے آتا ہے مجھے۔ سالے بہن! اس لڑکے نے باسط کا گریبان پکڑ لیا تھا جب ساریہ تیزی سے ان کی طرف آئی تھی۔ چلو باسط، پلیز دفع کرو، چلو۔ عمر بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے باسط کو کھینچ کر اس سے علیحدہ کیا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا اس لڑکے سے دور لایا تھا۔ باسط ابھی بھی اسے شعلہ بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں لے جاؤ اس کو، باندھو جا کے کہیں، ایسے آوارہ جانوروں کو کھلا نہیں چھوڑتے۔ اس لڑکے نے پیچھے آواز لگائی تھی۔ عمر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ باسط اگنور کر انہیں۔ نہیں، چل یار چل، ہم چلتے ہیں۔ اس نے ساریہ کو اشارہ کیا۔ پس منظر میں میوزک ابھی تک بج رہا تھا۔ وہاں موجود لڑکے لڑکیاں انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکا ابھی تک استہزاء سے بھرے جملے کس رہا تھا۔ لے جاؤ اسے، سمجھا کیا ہوا ہے مجھے؟ جا، چلا جا اور اپنی اس رکھیل کو بھی لے جا۔ یہ اس کے ضبط کی حد تھی۔ وہ اپنی ذات پہ کیچڑ سہ سکتا تھا لیکن اس کے لیے کوئی بھی گالی برداشت نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح واپس پلٹا تھا۔ ساریہ اور عمر کی آوازوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ اس لڑکے کی طرف بڑھا اور اس کی ناک پہ مکہ رسید کیا تھا۔ وہ لڑکھڑا سا گیا تھا۔ باسط نے اسے گریبان سے پکڑ کر زمین پہ پٹکا اور اس پر مکوں کی بارش کر دی تھی۔ وہ شام اپنے ساتھ پریشانی کی بارش لے کر اس حویلی پر برسی تھی، بن آب کے ماہی کی جیسے بڑے آنگن سے دروازے تک چکر کاٹتی رہی تھی۔ نوری کہاں گئی تو؟ ماہنور کہاں گئی؟ وہ اکثر بچوں کے پیچھے پیچھے باہر نکل جاتی تھی لیکن پھر لوٹ بھی آتی تھی۔ آج نہ جانے کب نکلی تھی اور کہاں کو چلی گئی تھی کہ ابھی تک واپس نہیں پہنچی تھی۔ ایک ایک کر کے اس کے بھائی کام دھندوں سے لوٹے تو انہوں نے ایک ایک کو دوڑایا۔ کوئی کھیتوں تک گیا، کوئی ڈیرے میں دیکھ آیا۔ اعجاز تو پکی سڑک گیا تھا پر اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ چاچی انہیں سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میری بچی، میری دھی کہاں چلی گئی؟ کوئی اسے ڈھونڈ لاؤ۔ وہ اسے گالیاں دیتی تھیں، کوسنے سناتی تھیں، اس کے ساتھ مار پیٹ کرتی تھیں، پر یہ سکون تھا کہ وہ نظروں کے سامنے تھی، یوں نہیں کہ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میری نوری کو ڈھونڈ لائیں، وہ کملی سی، اسے تو اپنا ہوش نہیں ہے۔ کسی بدنیت کی رال ٹپکی تو نہیں؟ مقصود کے ابا میری نوری کو ڈھونڈ کر لائیں۔ منظر حسین مارے مارے سارے پنڈ میں پھرے تھے، بار بار صافے سے پسینہ پونچھتے، چبھن زدہ آنکھوں کو رگڑتے، نوری نوری پکارتے ہوئے۔ شام کسی مزمحل بڑھیا کے جیسی اپنی جھکی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھے ہولے ہولے چلی جا رہی تھی۔ جب انہیں وہ دکھائی دی، اپنی کملی جھلی دھی پانی کے نالے کے پاس جامن کے پیڑوں کی چھاؤں میں بے سدھ سوئی پڑی تھی، ارد گرد سے بے نیاز، ہوش و خرد سے بیگانہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے، رب سونیا میری دھی کی آزمائش اتنی سخت کیوں؟ اتنا ظلم کیوں؟ ایسا بھی کیا میرے مالک؟ اس شام جب وہ اپنی جوان پاگل ہو چکی بیٹی کو سہارا دیے گھر لا رہا تھا تو اس کی کمر بڑھاپے سے نہیں تھکان سے جھکی جا رہی تھی۔ اس اسٹریٹ لائٹ کی ناکافی روشنی میں ساریہ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ داہنی طرف دور تک وہ نشان تھا۔ سفید شرٹ پر جا بجا خون کے چھینٹے تھے، گریبان پھٹ چکا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ تماشا لگانے کی باسط؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کناں تھی۔ میں اسے قتل کر دیتا تو بھی مجھے سکون نہ ملتا کہ اس نے تمہارے لیے جو لفظ بولا تھا۔ اس کے اندر کے بھانبڑ ابھی تک نہیں بجھے تھے۔ مجھے اپنی ذات کی تحقیر گوارا ہے ساریہ، لیکن تمہاری نہیں، کبھی بھی نہیں۔
वो उसी को ही देख रही थी। तुम किस किस से लड़ोगे, किस किस की आंखें नोचोगे? मैं सारी दुनिया को अंधा कर दूंगा, मैं सारी दुनिया को कब्रिस्तान बना दूंगा। उसकी सांसें धूकनी के जैसी चल रही थीं। उसने आगे बढ़कर उसका चेहरा मजबूती से अपने हाथों में भरा था। किसी की मर्दानगी अगर औरत की ज़ात को कमज़ोर जानकर उसकी इज्जत पे हाथ डालने तक की है, तो मैं उस मर्दानगी को दरिंदगी से ज़्यादा और कुछ नहीं समझता। अगर किसी को तुम्हें इज्जत से देखना नहीं आता ना, तो उसे कुछ भी देखने का हक नहीं है, उसे तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं। वो उसकी आंखों में देखता बोलता चला गया था। सिर्फ उसे, जिसे तुम ये हक खुद दो सारिया, अगर तुम ये हक किसी को दो। सारिया ने खामोशी से अपना माथा उसके सर से टिका दिया था और उसे अपने सारे हक सौंप चुकी थी वो पहले ही। स्ट्रीट लाइट की रोशनी किसी बारिश के जैसे उन्हें भिगो रही थी। तुम मेरी खैर हो सारिया, तुमसे मोहब्बत मेरी कुल पूंजी है, तुम्हारी आंखों में मेरी बहिश्त है। तारों से भरा आसमान उन्हें एक टुक देख रहा था। बड़ा घुन्ना है भाई तू, मान गया मैं। उमर ने उसे सर से पांव तक देखा और मुंह के जाविये बिगाड़ कर कहा था, मेरे सामने यूं बना रहेगा जैसे तुझसे बीबा बच्चा इस दुनिया में कोई नहीं। और उसे मुंह फाड़ के कसीदे सुना कर आया है। सही है बेटा, वेरी गुड। बासित मुस्कुराते हुए शर्ट इस्त्री करता रहा था। मुझ शहरी से तो तू पेंडू अच्छा रह गया, ना शक्ल ना सूरत, और सब मिल भी गया, लड़की भी और सबके सामने मार मार के विलन भी और वाह भी। जल क्यों रहा है? जलती है मेरी जूती, वो फौरन बोला था। एक्चुअली मैं भी नहीं जलती, बासित हंस दिया था। उनसे दूर, बहुत दूर, अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी सारिया छत को घूर रही थी। उसकी आंखों में तो अभी तक वो मंजर अटका हुआ था जब उसके सामने खड़ा वो लड़का उसे ही देख रहा था, जब वो उसे अपनी बहिश्त कहता था, जब वो अपनी मोहब्बत को किसी इबादत जैसा मोतबर मानकर अपने लिए खैर कहता था। वो उसे कहता था कि वो दुनिया में सबसे अहम है और उसके लिए जंगें लड़ी जा सकती हैं। उसने आसूदगी से आंखें मूंद ली थी। उसे किसी जंग की ख्वाहिश नहीं थी, उसके लिए तो बस वही ख्वाहिश था। डॉक्टर जैन ने वो चंद माह का बच्चा उसकी गोद में दिया था। वो हैरानगी से उन्हें देखने लगी थी। ये उन्होंने प्यार से बच्चे को देखा था। माँ पैदा करते ही मर गई, बाप इतने से बच्चे को नहीं पाल सकता था, तो इसे यतीम खाने में डाल दिया। हमना की आंखें भर आईं। कुदरत भी कैसे कैसे इम्तहान लेती है, किसी को नवाज के आजमाती है और किसी को खाली दामन रखकर। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया था। तुमसे वादा किया था कि तुम्हारा अकेलापन दूर करूंगा। देखो कुदरत ने कैसा अच्छा सबब बना दिया है। वो धीमे से मुस्कुरा दी थी। बस ये आज से तुम्हारा बेटा है, इसका अच्छा सा नाम रखो और बस इसी से अपनी तन्हाई दूर करो। वो उसे प्यार से देख रही थी। बच्चा भी कुलकारियां भरने लगा था। जिंदगी एक नई डगर पे चल रही थी। क्लास में सारिया इमरान की दाएं तरफ से उठकर बासित की बाएं जानिब आ चुकी थी। वो दोस्त और महबूबा के दरमियान में सैंडविच बन चुका था। एक कान में वो मीठी रागनी जिसकी आवाज़ घुलती रहती थी और दूसरे में चाचा काका। अब ऐसा होने लगा था कि वो दोनों चुपचाप क्लास बंक करके लॉन में बैठे बातों में मसरूफ़ मिलते या कैफ़े में भाप उड़ाते खाने के साथ दिखाई देते। कभी अल्लाह तौबा भी कर लिया करो तुम दोनों, बीबी कुछ लिहाज करो। और तू पेंडू, गांव से माँ के जेवर बेचकर शहर आशिकी माशूकी करने आया है। तू दोस्त का हिस्सा कम करता जा रहा है। उसका गिला होता। बासित कंधे उचका देता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सारे का सारा उसी का हूँ। वो मुंह बनाता, निगोड़ा मारा रांझा। वो फिर कहता, मजनू की औलाद, 4 लफ्ज़ पढ़ भी लिया कर के कुछ फलाह मिल जाए। वो हंस देता। उसे पता था कि वो उनके लिए दिल से खुश है। उस शाम वो वॉक के लिए निकली थी। कान में हैंड्स फ्री थी। वो बासित से बातों में मसरूफ़ रोज़ की तरह कॉलोनी की सड़कों पे टहल रही थी। पता है मेरी ज़िंदगी खसां रसीदा थी। यहाँ आसूदगी के दरख्त अपना आप खो चुके थे। तुमने उनकी टुंड मुंड डालियों पर नई कोंपलें खिला दी हैं। वो मुस्कुरा दिया था। तुम्हारा शुक्रिया, शुक्रिया तो तुम्हारा है मादाम, वो होले से बोला था। मैं गांव का उजड़ गंवार पेंडू सा लड़का और तुम ठहरी शहर की पूरे तमाद पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की। तुमने मुझे चुनकर मुझे सोने का कर दिया है। वो यूं ही बातों में मगन बड़ी सड़क से राउंड लेकर पलटने को थी जब वो गाड़ी उसके पास रुकी थी। सड़क पर दूर तक टायर चरचराए थे। इससे पहले कि वो कुछ समझती, वो नकाब पोश निकला। उसके मुंह पे हाथ रखकर उसे गाड़ी में धकेला था। उसकी चीख घुट कर रह गई थी और दूसरी तरफ बासित परेशान सा फ़ोन कान से लगाए बैठा रह गया। हेलो सारिया, सारिया क्या हुआ? जवाब दो सारिया, हेलो।
अब्बास ने दूर से जीप आती देखी तो वो जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। नाक तक बंधे रुमाल ने चेहरा बहुत हद तक ढांप रखा था। बाकी की कसर सर पे तिरछी पहनी टोपी कैप ने पूरी कर दी थी। धूल उड़ाती सड़क पर आदिल की जीप नज़दीक आती जा रही थी। वो चौकस सा हो गया था। पिछले 3-4 दिन से वो इसी में लगा हुआ था। उन सब गुत्थियों की सुलझन यकीनन एक शख्स के हाथ में ही थी, जो आदिल था। वो हर जवाब जानना चाहता था। वो अगर काबू में आ जाता तो मुमकिन था कि उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता। इसीलिए वो अब उसके मामूलात का जायज़ा लेने के बाद उसके पीछे था। वो रोज़ सुबह होते ही एक चक्कर अपने डेरे का लगाता था। इस दौरान उसे काबू किया जा सकता था। सड़क सुनसान होती। अब भी अब्बास ने डैशबोर्ड पर रखी पिस्तौल उठाकर ऊपर की जेब में डाली और गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही आदिल की जीप उसके पास से गुजरी, उसने उसका पीछा शुरू कर दिया था। वो बेतहाशा गाड़ी भगाता हुआ उस तक जा मिला था। बड़ी सड़क शुरू होते ही उसने गाड़ी की रफ्तार तेज की और उसकी जीप से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। आदिल उसे हैरानी से देख रहा था। जब वो फुर्ती से बाहर निकला और उसके सर पे पहुंचा, पिस्तौल उसकी कनपटी पर तान कर भारी आवाज में उसे उतरने को कहा था। तू जानता है कि मैं कौन हूँ? नीचे उतर बहन। गाली पर उसकी रगें तन गई थी। अब्बास ने पिस्तौल का बट उसकी कनपटी पर दे मारा था। खून की एक बारीक सी लकीर नाक तक बह निकली थी। नीचे उतरेगा या गोली उतार दूं तेरे भेजे में। तभी अब्बास ने फायर की आवाज़ सुनी और वो गाड़ी आती दिखाई दी थी। उसने चौंक कर देखा, वो आदिल ही के बंदे थे। यकीनन अपना पीछा होता देखकर उसने उन्हें फ़ोन कर दिया था। अब्बास ने पलट कर उसे देखा। वो उसे देखकर हंसा था। तुझे क्या लगा आदिल, मकसूद पे हाथ डालना इतना ही आसान होगा? फिर से गोली चली थी। पिघला हुआ शीशा अब्बास के बाएं बाजू में से गुजर गया था। उसने तकलीफ पर गलबा पाकर पिस्तौल उस पे तानी और ट्रिगर दबा दिया। आदिल नीचे झुक गया था। वो अंधाधुंध गोलियां चलाता गया, यहाँ तक कि पिस्तौल खाली हो गई। दूसरी तरफ से आदिल के बंदे भी गोलियां चलाते उसी की तरफ आ रहे थे। अब्बास जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा था। बासित फ़ोन कान से लगाए परेशानी के आलम में टहल रहा था। उसका फ़ोन मुसलसल बंद है। इमरान वहीं पास बिस्तर पर बैठा उसे ही देख रहा था। तू टेंशन ना ले, हो सकता है तेरा वहम हो। तो फिर उसका फ़ोन बंद क्यों है? बैटरी डेड हो गई होगी या तू बैठ यहाँ सुकून से, उमर ने उसे तसल्ली दिलाते लहजे में कहा था। वो वैसे ही चक्कर काटता रहा था। उसके अब्बू को फ़ोन करूं? उनका नंबर है तेरे पास? बासित खामोशी से फ़ोन पर सर्च करता रहा। लैंडलाइन का नंबर है मेरे पास। उसने कॉल मिलाई और फ़ोन कान से लगाया था। दूसरी तरफ वो परेशान थे। शाम की वॉक के लिए निकली थी, अभी तक नहीं लौटी। मैं तो कॉल्स कर कर के थक गया हूँ, फ़ोन बंद है। अब के बासित के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। उसे लगा सारी दुनिया चकरा गई है। वो कॉल बंद करके बाहर को भागा था। बासित रुक, मैं भी आ रहा हूँ। उमर भी स्लीपर पैरों में फंसाता पीछे ही कमरे से निकला था। उस सड़क पर वो पूरी रफ्तार से गाड़ी उड़ाए ले जा रहा था। उसके बाजू से खून बह रहा था। तकलीफ से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। आदिल की जीप और उसके बंदों की गाड़ी मुसलसल उसके ताक़ुब में थे। वो वक्तन फ़वक्तन उस पर गोलियां चला रहे थे। उसकी गाड़ी की विंड स्क्रीन में कई सुराख हो चुके थे। तभी एक गोली उसकी गाड़ी के टायर में लगी। गाड़ी बेकाबू होकर खेत में उतर गई थी। अब्बास ने आओ देखा ना ताओ चलती गाड़ी से खेत में छलांग लगा दी थी कि लंबे लंबे पौधों ने उसे अपने अंदर छुपा लिया था। बेकाबू गाड़ी सीधी चलती दरख्त से टकराई और एक धमाके से उसमें आग लग गई थी। आदिल और उसके आदमी सड़क के ऊपर खड़े तमाशा देखते रहे। वो खेत में मट्टी में कीचड़ में लथपथ पड़ा लंबे लंबे सांस ले रहा था। घास और खून की बू इकट्ठी होकर उसके नथनों से टकरा रही थी। दूर नीले आसमान पर चीलें उड़ती फिर रही थीं। वो दोनों उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। हर मुतवक्को जगह पर उसकी सहेलियों के घर, कैंप्स, पार्क, उसके आस पड़ोस में, कॉलोनी की सड़कों पर उसका नामो निशान नहीं था। अंकल आप टेंशन ना लें, हम देख रहे हैं, वो मिल जाएगी ज़रूर, आप फिक्र ना करें। वो अलग परेशान थे। उन्होंने नज़दीक रेस्टोरेंट, होटल, पार्क हर जगह ढूंढ लिया था। अस्पताल चेक करते हैं बासित, हर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, वार्ड्स, ट्रामा, इमरजेंसी। रात का 1 बज रहा था जब वो दोनों सड़कों पर यहाँ वहाँ भागे फिर रहे थे। उसके वालिद पुलिस में रिपोर्ट करवा चुके थे। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। अल्लाह, कहाँ होगी वो, किस हाल में होगी? बासित थक कर उस बेंच पर बैठा था। वो मजबूत आसाब का इंसान था, लेकिन अब उसकी अपनी हिम्मत भी टूटने लगी थी। अब वो भी थक के चूर था और अब वो रोना चाहता था। पता नहीं जिंदा भी होगी या
इससे आगे वो सोचना नहीं चाहता था, इससे आगे कुछ सोचने को था भी नहीं उसके पास। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर नूरी के पैरों में जंजीर डाली थी, जिसका दूसरा सिरा बरामदे के सतून से बंधा था। वो बेयकीनी से उन्हें देखती रही थी और वो बस सर झुकाए रोते चले जा रहे थे। कौन सा बाप अपनी औलाद को यूं ढोर डंगरों की तरह बांधता है धीरानी, उन्होंने हिचकियों के दरमियान कहा था। लेकिन कौन सा बाप अपनी औलाद को हमेशा के लिए खोना चाहेगा। तो उसकी कई शामें वहीं गुजरी थीं, उसी बरामदे में सतून के आसपास। वो कई बार रोती चिल्लाती भागने की कोशिश करती तो जंजीर अपना फर्ज निभाती। कई दोपहरें उसने वहीं सहन में गुजारी थी। हर बंदा उसे उठाने और अंदर ले जाने की कोशिशों में नाकाम रहता था। कई रातें वहीं गुजरी थीं और बहुत सारे सूरज इसी कैद में तुलू हुए थे। शावर से गिरता ठंडा पानी उसके वजूद को भिगो रहा था। वो सर झुकाए खड़ा था। बाजू के जख्म से बहता खून फर्श पर जमा पानी को लाल करता जा रहा था। वो बस खामोशी और बेबसी से उसे देखता जा रहा था। मुझे क्यों लगा ये इतना आसान होगा, वो इंसान इतनी आसानी से मेरे काबू में क्यों आ जाता। उसने थक कर सोचा था, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। ठंडा पानी जख्म पर पड़ता तो बदन में दूर तक तकलीफ चली जाती। कितने लोग हैं दुनिया में जो इल्ज़ाम सहते रहते हैं, गालियां सुनकर चुप हो जाते हैं, जालिम को जालिम कहकर, उसके जुल्म को उसकी मजबूरी बताकर उसे सहते रहते हैं। कितने लोग हैं दुनिया में जो इंसाफ को ताकत के साथ जोड़कर लड़ने से बरीउज़्ज़िम्मा हो जाते हैं। पानी मुसलसल बह रहा था, वो राग सा मुसलसल उसके कानों में गूंज रहा था। मुझे भी यही करना सीख लेना चाहिए, समझौता। जो हो गया सो हो गया, सब कुछ तकदीर पर डालकर ज़मीर को लोरी सुनाकर बस जीने की भूंडी सी एक्टिंग ही तो करनी सीख लेनी चाहिए। बस यही इस सब का हल है। वो फैसला कर चुका था। उस चिलचिलाती दोपहर में जब सूरज ऐन सर पर कहर बरसा रहा था, वो अपने तई एक बार फिर गांव को हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहा था। वो कॉल तकरीबन 3 बजे के नज़दीक आई थी। गैर शनासा नंबर था। बासित ने हैरानी से देखा था। कौन? दूसरी तरफ सारिया की आवाज़ थी। वो सख्ते में आ गया था। सारिया, कहाँ हो तुम? सारिया, ठीक हो तुम? कहाँ हो? कॉल कट गई थी। वो बेचैन सा हो गया था। तभी एक और नंबर से कॉल आई। हेलो सारिया, तेरा बाप बात कर रहा हूँ साले, वो इस्तेहज़ा उड़ाती आवाज़ में बोला। पहचाना? साथ ही उसने एक गाली निकाली। बासित की गुस्से से रगें तन गई थी। वो वही वेलकम पार्टी वाला लिफंगा लड़का था। उसने मुठियां भींच ली और हलक के बल चिल्लाया था, तेरी इतनी हिम्मत! कहाँ है सारिया? कुत्ते, मैं तेरे चीथड़े उड़ा दूंगा अगर उसे कुछ हुआ तो। बोल, वो कहाँ है हरामी? पीछे सारिया की चीखें सुनाई दे रही थी। तेरी जुबान से एक और गाली निकली ना, मैं तेरी इस आइटम का वो हशर करूंगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। बासित कांप कर रह गया। पस मंजर में सारिया के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। बासित के पसीने छूट गए थे। प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ प्लीज़। वाह, मुझे पसंद आया। दूसरी तरफ से वो ज़ोर से हंसा था। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, उसे बीच में क्यों लाए हो? वो तो हमेशा से बीच में है, वही तो इसकी शुरुआत है ना। वो ज़रा रुका था। वैसे तेरी गर्लफ्रेंड है बहुत कमाल, सच्ची। रात, ये वक्त और इतनी खूबसूरत लड़की, किसका ईमान खराब नहीं होगा? बासित दांत कचकचा कर रह गया था। प्लीज़, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं वो करने को तैयार हूँ। प्लीज़ उसे छोड़ दो। वो हंसता चला गया था। प्लीज़ उसे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन अपना बदला लेने के बाद।